زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعہ کا دن 11 جون اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچستان میں خاران کے علاقے المرک میں نامعلوم مسلح افراد اور قابض پاکستانی فوج کے درمیان تصادم ہوئی ہے جو 5 گھنٹے سے بھی زیادہ جاری ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق جھڑپوں کے دوران قابض پاکستانی فوج کے متعدد اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے ہیں، تاہم اس مسلح تصادم کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے مئی کے مہینے میں بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر مشتمل تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مئی کے مہینے میں بھی بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی اور جارحیت عروج پر رہی۔ اس مہینے میں قابض پاکستانی فوج کی جانب سے 70 سے زائد فوجی جارحیتوں اور چھاپوں میں 11 افراد قتل ہوئے۔ ان میں سے 4 افراد فوج نے اور 5 افراد فوجی ڈیتھ اسکواڈ اور 2 افراد پولیس نے قتل کیے۔ مئی کے مہینے میں 51 افراد قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہوئے، جبکہ بلوچستان کے تلعرض میں جاری جارحیتوں میں 30 سے زائد گھروں کو نذر آتش کیا گیا اور مختلف علاقوں میں 12 افراد قتل ہوئے جن کی محرکات معلوم نہ ہو سکے، جبکہ 16 افراد پاکستانی عقوبت خانوں سے بازیاب ہو کر گھر پہنچے۔ دلمراد بلوچ کے مطابق مئی کے مہینے میں قابض پاکستانی فوج نے بولان اور کلکور میں وسیع پیمانے پر جارحیت کی۔ پنجگور کے علاقے کلکور میں 2 اور لگ پاس پر ایک نہتے شخص کو قابض پاکستانی فوج نے براہ راست فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جبکہ ایک سرمچار فوج کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہوا۔ دیگر 2 سرمچار اور بلوچ نیشنل موومنٹ کے کارکنوں کے 2 قریبی رشتہ داروں کو ریاستی ڈیتھ اسکواڈ نے ہدف بنا کر قتل کیا۔ اسی مہینے مشقے سے یہ ہولناک خبر سامنے آئی کہ اسی سال جنوری میں پاکستانی فوج کے ڈیتھ اسکواڈ نے 3 خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس خبر کو میڈیا کے سامنے لانے کے جرم میں پاکستانی فوج نے متاثرہ خاندان کے لوگوں پر ظلم و ستم کے نئے سلسلے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ مئی کے مہینے میں قابض پاکستانی فوج نے بولان، کیچ، آوران، مشکے، پنجگور، مستنگ اور کوہلو سمیت مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر جارحیت جاری رکھے، جبکہ پنجگور کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے پیش اور جنگلی زیتون سمیت دیگر درختوں کے جنگلات نذر آتش کیے اور مختلف علاقوں میں لوگوں کے گھروں کو لوٹنے کے بعد نذر آتش کر دیا گیا۔ بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کرنے والوں پر قابض پاکستانی فورسز کی جانب سے تشدد انسانیت کے خلاف گھناؤنا جرم ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قابض پاکستانی فورسز نے شال میں مظاہرین کو زدکوب کیا جو اپنے جبری گمشدہ عزیزوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف گھناؤنا جرم ہے اور بلوچ قوم سے قابض پاکستان کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے اور قابض پاکستان کے اقدامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر سطح پر بلوچ نسل کشی کا تہیہ کر چکا ہے۔ بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ نواب برہمداغ بگٹی نے بلوچ قوم دوست رہنما نواب خیر بخش مری کی یوم وفات پر جاری اپنے ایک بیان میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواب مری ایک عظیم لیڈر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بلوچ قوم کے بہتر مستقبل کے جدوجہد کرتے ہوئے گزاری۔ نواب برہمداغ بگٹی کا کہنا تھا کہ نواب مری نے اپنی پوری زندگی بلوچ قوم کو بیدار کرنے اور ان میں شعور اور اپنے حق کے آگاہی دیتے ہوئے گزار دی۔ شال میں نامعلوم افراد نے ڈبل روڈ پر بدھ کی شب ملک عظمت قاسی نامی وکیل کو خنجروں سے وار کر کے قتل کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد اس کے چیمبر میں داخل ہوئے اور اسے اپنے ہی دفتر کے اندر قتل کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ مقتول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے وکیل تھے اور سیشن جج سریاب ڈویژن
मलिक अमानुल्लाह कासी के बड़े भाई भी थे। वकला बरादरी ने मलिक अजमत के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि शाल बलूचिस्तान का मरकजी शहर है और इसके बावजूद इंतजामिया शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। खुजदार के रिहायशी आसिफ बलोच और रशीद बलोच, जिन्हें 31 अगस्त साल 2018 को नौशकी से काबिज पाकिस्तानी फौज ने दीगर 11 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हुए जबरी तौर पर लापता किया था, कि हमशीराउन ने रियासती इदारों से इंसानी हमदर्दी की बिना पर अपने भाइयों की बाजियाबी का मुतालबा किया है। लापता आसिफ बलोच की हमशीरा सारा बलोच ने एक वीडियो बयान में कहा है कि मेरे भाई को 2 साल कबल नौशकी से 10 दोस्तों के हमरा पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने गिरफ्तार करके लापता कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक और उनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई थी, लेकिन 2 साल से हमें उनके बारे कुछ नहीं बताया जा रहा है कि वो कहाँ और किस जुर्म की सजा में लापता किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भाई सरकारी मुलाजिम और हमारे घर का वाहिद सहारा था। उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया इदारों और आला हुक्काम से अपने भाई की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें उस जुर्म के मुताबिक सजा दी जाए। लापता रशीद बलोच की हमशीरा ने कहा है कि उनके भाई और उनके दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद उनकी तशद्दुद ज़दा तस्वीरें सोशल मीडिया में अपलोड की गई थी, जहां उनकी आंखों पर पट्टियां और हाथ बंधे हुए थे, लेकिन इसके बाद उनकी कोई खबर नहीं कि वो कहां और किस हाल में हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ लापता होने वाले 3 नौजवान अब्दुल रब, समी और बिलाल बलोच बाजियाब होकर घर पहुंच गए हैं, लेकिन मेरा भाई और उनके दीगर दोस्त ताहाल लापता हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने लापता तालिब इल्म रहनुमा जाकिर मजीद बलोच की गुमशुदगी को 12 साल मुकम्मल होने पर क्वेटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज से 12 साल कबल बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी रहनुमा जाकिर मजीद को मस्तूंग से फोर्सेस के एहलकारों ने तफ्तीश के बहाने गिरफ्तार कर लिया, जिनका आज तक पता नहीं। उन्होंने कहा कि आज भी जाकिर जान की बुजुर्ग वालदा रियासत से सवाल करती फिर रही है कि मेरा लख्त जिगर कहाँ है, किस हाल में है, उसका कसूर क्या है। हालांकि रियासत के पास वो तमाम इदारे मौजूद हैं जो किसी गुनहगार को सजा देने के अहल हैं, पुलिस है, अदालतें हैं, मगर जाकिर की जबरी गुमशुदगी में जाकिर के साथ साथ उसके पूरे खानदान की जिंदगी तहस नहस होकर रह गई है। ताहम रियासत अपने आप को न सिर्फ बरी ज़मा समझकर इस मामले पर खामोश है, बल्कि दूसरी तरफ रियासती फौज और उसके इदारे जबरी गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल करने का बाजार गर्म किए हुए हैं। जहरी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया है, जिसकी शनाख्त अली भट्टार के नाम से हुई है। ग्वादर में दश्ती मंजिल के सामने करोला गाड़ी की टक्कर से बच्ची हलाक हो गई। मस्तंग सोर कारेज में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। जहरी के इलाके गजान में ट्यूबवेल पर बिजली की करंट लगने से एक शख्स हलाक हुआ। खुजदार हिंदू मोहल्ले में घर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से 3 खवातीन झुलसकर जख्मी हो गई हैं। नसीराबाद के इलाके उस्ता मोहम्मद में खसरे की वबा ने 2 बच्चों की जान ले ली है। जराये के मुताबिक उस्ता मोहम्मद समेत पूरे डिवीजन में खसरे की वबा पिछले 6-7 माह से फैल रही है, जिसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। ये थे बलूचिस्तान से मुतालिक खबरें। अब इलाक़ाई और आलमी खबरें पेश करेंगे खलील बलोच। अफगानिस्तान के सूबे बगलान में नामालूम अफराद ने बारूदी सुरंगों का खात्मा करने वाली एक बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीम के 10 रजाकारों को फायरिंग करके हलाक कर दिया है। अफगान वजारत दाखिला ने बुध को तस्दीक की है कि बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने का काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम आलो ट्रस्ट के रजाकारों को बगलान में कायम कैंप में निकाब पोश अफराद ने निशाना बनाया। सुबह बगलान के पुलिस के तर्जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि निशाना बनने वाले तमाम अफराद अफगान शहरी हैं। ये अफराद गैर सरकारी तंजीम के साथ मिलकर बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने का काम करते थे। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अफगान हुक्काम रजाकारों के कत्ल के लिए अफगान तालिबान को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान ने इसकी तरदीद की है।
बंदोबस्त पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा भर के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तानी फौज के हाथों लापता होने वाले अफराद के लवाहिकीन की जानिब से अपने प्यारों की रिहाई के लिए सूबाई असम्बली चौक में एहतजाजी धरना शुरू किया गया है। धरने में मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि लापता अफराद को रिहा किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना जारी रखेंगे। धरने में शामिल मुजाहिरीन का कहना है कि बहुत सारे अफराद मुख्तलिफ इलाकों से लापता हैं, जबकि उनके लवाहिकीन दर बदर की टोकरें खाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि लापता अफराद को अदालत में पेश किया जाए और कानून के तहत कार्रवाई की जाए और अगर वो बेगुनाह हैं तो रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबा किया है कि म्यांमार की मशरकी रियासत किया में एक नया इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, जहां हुकूमती फोर्सेज और बागी ग्रुपों के दरमियान लड़ाई से बच निकलने वाले हजारों लोगों को पाका कशी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में म्यांमार इंसानी हुकूक के टॉम एंड्रयूज ने एक बयान में कहा है कि रियासत किया में 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भारी गोलाबारी और हमलों से बचने के लिए देही इलाकों के लोगों ने करीबी जंगलों का रुख किया है, जहां उन्हें खुराक, पानी और पनाहगाह दस्तयाब नहीं। इसराइली फोर्सेज ने एक और वाक़े में जुमेरात की सुबह गरबे उर्दन के शहर जनेन पर दावा बोल दिया है, जिसके बाद फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेज और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़पें शुरू हुई हैं और झड़पों के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 फ़लस्तीनी सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक रागीर जख्मी भी हुआ है। फ़लस्तीनी इंटेलिजेंस ने बताया है कि इसराइली फौज की फायरिंग से हलाक होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शुनाख्त कैप्टन तीसीर अफसा और लेफ्टिनेंट अदम अलवी के नाम से हुई है। दूसरी तरफ शामी शहर अम्स में लिबनानी मलेशिया की एक असला गोदाम पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 7 गैर शामी अफराद भी शामिल हैं। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ खुराकें खरीदकर गरीब ममालिक को देने का फैसला कर लिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की फराहमी की आलमी दबाव के बाद अमेरिका की जानिब से फाइजर कंपनी की वैक्सीन खरीद कर 2 साल में 100 मुल्कों को अतिया की जाएंगी। अमेरिका की जानिब से 20 करोड़ खुराकें रवां साल फराहम की जाएंगी, जबकि 2022 तक 50 करोड़ वैक्सीन फराहम कर दी जाएंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि जब तक ये आलमी वबा दुनिया में मौजूद रहेगी, उस वक्त तक अमेरिकी अवाम को उससे खतरा रहेगा। इसी के साथ ही आज की न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम होता है। सारिन बलोच को इजाज़त दीजिए।